ایک دفعہ مولانا بلخی بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانہ کی دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار ورفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ جنس نکالنے لگتا تھا، اور اس وقت تک وہ جنس تھیلے میں نہیں ڈالتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی تھی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند جنس نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ دکاندار ورفتگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا، اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان گھما رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے، یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے نخوت سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اسے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اسے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے یا عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے اور مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا ہے۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اور رات گن گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول جو تھا وہ بے حساب اطاعت بھی تھا۔ یہ مولانا صاحب مولانا جلال الدین محمد بلخی المعروف مولانا رومی تھے، اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ کر اس کا ذکر کرتے رہو اور بے حساب کرتے رہو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، اور یہ کل عشق الہی ہے۔ ایریس کی بات کریں اور ستارہ مریخ والوں کی بات کریں کہ آنے والے ہفتے میں کس طرح کے معاملات ہونے والے ہیں، اس ویک میں ایک خاص بات کہ ہم آپ لوگوں کو جو پریڈکشن بتانے جا رہے ہیں وہ ڈے بائی ڈے ہے۔ کئی لوگوں کا اصرار تھا پہلے ہمیں کہ آپ جنرل اور میرڈ لائف یا مختلف طریقے سے جو ہم پریڈکشن کر رہے تھے اس کے اوپر بات کریں، مگر اس ویک میں ہم آپ کو آپ لوگوں کے پرزور اسرار پر جو ہے
आपको डे बाय डे प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। तो डे बाय डे प्रेडिक्शन में एरीज़ की अगर बात करें तो इस वीक में आपके टेलीफोनिक राब्ते, लोगों के साथ रवाबत और कम्युनिकेशन का वीक नज़र आता है। आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर वाबत करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। यानी कि ये वाला हफ़्ता राब्तों का हफ़्ता है, एक दूसरे के साथ तल्लुकात का हफ़्ता है और कम्युनिकेशन का हफ़्ता है। अगर इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने CV भी जमा करवा सकते हैं, मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ भी आपके मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और जिन लोगों के साथ आपकी नाराज़गियाँ चल रही हैं वो नाराज़गियाँ अगर आप ख़त्म करेंगे तो भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो चलते हैं मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन की बात करें एरीज़ वालों की, तो आप लोगों का मंडे वाले दिन ज़रा दिल टूटा हुआ हो सकता है, चीज़ें ज़रा स्टक होंगी, मामलात में कुछ रुकावट सी होगी, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं आना। मंडे वाले दिन थोड़ी सी रुकावट है और आप जो मामला चाहते हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे घरेलू मामला से रिलेटेड हो, चाहे जो भी शोबे से रिलेटेड हो, तो आपने परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में आपके मामला काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आते हैं। जैसे अगर हम मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन आप लोगों को किसी न किसी वालिदैन की तरफ से, किसी औरत की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। ये हेल्प आउट ऑफ सिटी से भी मिल सकती है, आउट ऑफ कंट्री से भी आपको कोई मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड मिल सकती है, कहीं आपने अपना CV या कहीं आपने अपने जॉब से रिलेटेड मामलात किए हों तो भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। और अगर हम बुध वाले दिन की बात करें, वेडनेसडे वाले दिन, तो ये वाला जो दिन है ये जो है रिलेशन से मुतल्लिक़ा दिन कहा जा सकता है आपके लिए। आपके जो रिलेशंस में दूरियां थीं या जिन लोगों ने कोई मंगनी या कोई निकाह या कोई इस तरह की कोई डेट रखनी हो, प्यार और मोहब्बत से रिलेटेड मामला जो है वो बुध वाले दिन आप लोगों के हो सकते हैं। और बुध वाले दिन आप जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं वो बेहतरी के मामलात आपको काफ़ी हद तक नज़र भी आएंगे। और अगर हम जुमेरात वाले दिन की बात करें तो आप जुमेरात वाले दिन एक अच्छी मुस्तकिम पोजीशन पे खड़े नज़र आते हैं। आपके पास 2-3 काम भी मौजूद होंगे, मगर एक काम के ऊपर आप मजबूती के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको अल्लाह की मदद भी मिलेगी। और आप जो है अपनी सैर व तफरीह के लिए भी बाहर जा सकते हैं, माली मामलात के लिए भी बाहर जा सकते हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती हैं। अगर जुम्मा वाले दिन की बात करें एरीज़ वालों की, तो जुम्मा वाले दिन आप जो अपने मामलात के लिए बेहतरी चाहते हैं, उसमें आपको एक अचीवमेंट, एक चीज़ मिलती हुई नज़र आती है, गोल मिलता हुआ नज़र आता है, जिसको अगर आप लोग करेंगे तो मामलात में काफ़ी हद तक बरकत भी मिलेगी और आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे थे वो मकसद आपको जुम्मा वाला दिन मिलता हुआ नज़र आएगा आने वाला हफ्ता में। और अगर हम सैटरडे की बात करें एरीज़ वालों की, तो मुस्बत पैगाम मौजूद है। ये पैगाम आपके कामों के लिए मामून हो सकता है और ये पैगाम आपके ख़ासकर कामों से मुतल्लिक़ा पैगाम है कि आप कोई काम कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई फैमिली से रिलेटेड पैगाम हो सकता है जिसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर हम संडे की बात करें एरीज़ वालों की, तो संडे वाले दिन आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, दिली ख्वाहिशात, वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं और आप मुस्तहकम तौर पे बैठे हुए नज़र आते हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। माली मुश्किलें जो है वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आती हैं इस पूरे वीक में। और एरीज़ के लिए इस वीक में पढ़ने के लिए सूरह अखलास है। सूरह अखलास 21 मरतबा इशा के बाद पढ़ सकते हैं अपने कामों के लिए। और अगर आप लोग सदका देना चाहें तो वो मंडे वाले दिन आप ज़रूर दीजिएगा सदका। और सदका कोई रेड कलर की चीज़, गोश्त का भी सदका दे सकते हैं, कोई रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका दीजिएगा, जिससे कि आपके मामलात में अल्लाह की मदद हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। टॉरस की बात करें, बुर्ज ज़ोहरा वालों की बात करें कि ज़ोहरा वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, अर्थ साइन आपका और आप लोगों के वीक की प्रिडिक्शन में जो आप लोगों का थीम ऑफ द वीक है, ज़ोहरा वालों का थीम ऑफ द वीक में आप थोड़े से रिलैक्स फील करेंगे और मुतमिन नज़र आएंगे और कामों के बारे में सोचते नज़र आएंगे, अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करते नज़र आएंगे और आप अपने मामलात को दीरक नगाह से देखते हुए नज़र आएंगे। मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन में आप लोगों को अपने
दुश्मनों से होशियार रहना पड़ेगा। लोग आपके कामों में दखल अंदाज़ी देते हुए नज़र आते हैं, चीज़ें आपकी कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती हैं, कोई रूहानी असर और बद असरात भी फ़ील होते हैं। और अगर हम आप लोगों के मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन आप लोगों के पास सॉलिड पैगाम मौजूद होगा, चीज़ों के मुतल्लिक़ पैगाम, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या मामलात आपके हो सकते हैं। कोई ख्वाब आ सकती है, आपको कोई ख्वाब से इशारा मिल सकता है, अल्लाह की तरफ से इशारा मिल सकता है, या कुदरतन आपको अल्लाह ताला बता सकते हैं कि बता देंगे कि आपके मामलात किस तरह जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। और अगर हम बुध के दिन की बात करें कि उसमें भी आपके लिए सॉलिड पैगाम है चीज़ों से मुतल्लिक़। बेसिकली आप लोगों को अपने मामलात से जो है वो देखना पड़ेगा कि मामलात में जो आसानियाँ होनी चाहिए वो क्यों नहीं हैं, चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, रुकावटें क्यों हैं, प्रॉब्लम क्यों हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन आपको बार बार छठी हिस्स आपकी बता रही होगी कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम मौजूद है, उसको सॉल्व करना है, वो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे वाले दिन की बात करें तो तब भी आपको देखा जाए तो आपके दिल और दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप ही जानते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको किस तरफ लेके जाना है। और जो आप अपनी जो खुफिया बातें या खुफिया चीज़ें जो अपने मामलात के लिए करना चाहते हैं उनको आपने ज़रूर देखना है। जुमा वाला दिन गुस्सा नहीं करना और पूरे तमाम तरीके से रहना है, जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना है। ये अगर हम सौर वालों की बुर्ज सौर वालों की बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे वाला दिन जो है वो कुछ थोड़ी सी आपके लिए डिस्टर्बेंस ला रहा है स्टार वाइज, मगर आप लोगों को सैटरडे और संडे वाले दिन आपके पूरे वीक की कसर निकल जाएगी। और इन 2 दिनों में आपके स्टार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आती है। ख़ासकर सैटरडे वाले दिन आप खुशी वाला माहौल आपके होगा, सफ़र कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, पैसे का मसला सॉल्व हो सकता है। और अगर हम संडे की बात करें तो जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के शादी के मामलात हैं, वहाँ भी जो है अल्लाह की मदद आती हुई नज़र आती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती हैं। तो क्योंकि मंडे वाला दिन जो है वो आपका असरात वाला दिन लग रहा है कि जिसमें थोड़ी सी रुकावटें हैं, तो आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा मंडे वाले दिन जो है वो पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पी लें। और अगर आप पूरे वीक कोई सदका करना चाहते हैं तो येलो कलर की चीज़ का फ्राइडे वाले दिन सदका दे सकते हैं, जिसमें आपकी वाइट कलर की भी किसी चीज़ का सदका आ सकता है, जिसको आप देने से आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सफ़र के दौरान मैंने 4 कलंदर एक नशीबी जगह बैठे हुए देखे। मैं भी उनके पास बैठ गया। वो खामोश बैठे थे। उनमें से एक उठा और दरख्तों के पत्ते तोड़ लाया, उन्हें उबाल कर सबके सामने रखा। वो सबने मिलकर खाए। 4 दिन ऐसा ही हुआ। 5वें दिन कोई ना उठा तो मैं समझ गया कि आज मेरी बारी है, लिहाजा मैंने भी इस अमल को दोहराया। इस तरह मुझे उनकी सोहबत में 10 दिन गुजर गए। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और नशीब में जहाँ हम बैठे थे पानी भर गया। पानी इतना था कि गले तक आ गया। मुझे डूबने का खतरा हुआ, लेकिन वो दरवेश अपनी जगह बैठे रहे। मैंने दिल में कहा, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, क्या हम यूं ही डूब जाएंगे? इस ख्याल के आते ही पानी फ़ौरन उतर गया। कलंदर कहने लगे, हम में से कौन है जिसने कुदरत के कारखाने में दखल अंदाजी की है? जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मैंने किया है तो सख्त नाराज़ हुए और फरमाने लगे कि तुम ऐसे नहीं हो कि हमारी सोहबत में रहो। जिसने पानी भरा था, क्या उसे इल्म नहीं था कि हम यहाँ बैठे हैं? तुम्हें इससे भी ज़्यादा फ़िक्र लाहक हो गई। मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही 10 दिन है जो मुझे मोमिनीन की सोहबत में रहने को मिले। जेमिनी वालों की बात करें, आप लोगों का एयर साइन है और थीम ऑफ द वीक बात करते हैं जेमिनी वालों की। तो थीम ऑफ द वीक में आपकी लाइफ का सर्कल इस वीक में पूरा होता हुआ नज़र आता है। जो आप प्लानिंग करना चाहते हैं, जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, जो अपने मामलात करना चाहते हैं, इसमें काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद मौजूद होगी। और ख़ास कर इस वीक में आपकी जो प्लानिंग है उसमें कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। तो ये वाला पूरा वीक आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। जो मंडे का दिन है
जेमिनी वालों के लिए इस दिन आप लोगों ने अपने दिमाग और जहन पर मुस्बत ख्यालात लेके आने हैं। कोई नेगेटिव सोच नहीं सोचनी, सोलमेट की तरफ से हो जाए, रिलेशंस की तरफ से हो जाए या किसी भी मामलात की तरफ हो जाए, आपने पॉजिटिव सोचना है। कहीं नेगेटिव फोर्सेस की वजह से आप फंस ना जाएं, क्योंकि सिर्फ मुझे मंडे वाला दिन ही थोड़ा सा स्टार वाइज जो है वो प्रॉब्लम वाला नज़र आता है। बाकी आपके दिनों में काफ़ी हद तक अल्लाह की बड़ी मदद मौजूद है। इसीलिए मैं आपके मंडे वाले दिन के लिए ख़ास वजीफ़ा और पढ़ाई भी बताऊंगा, सदका भी बताऊंगा। तो चलते हैं आप लोगों के ट्यूसडे को। ट्यूसडे वाले दिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, अल्लाह की मदद आएगी और आपके मामलात में जो मदद है रूहानी तौर पे भी आएगी, और ये मदद आपके वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सोलमेट की तरफ से आ सकती है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं और काफ़ी हद तक मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। बुध वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आप अपनी शादी से रिलेटेड मामलात देख सकते हैं, अपने लव अफेयर से मुतल्लिक़ मामलात को देख सकते हैं, और आप अपनी घरेलू ज़िंदगी को देख सकते हैं कि आप जो मामला चाहते हैं उसमें खैर बरकत आ सकती है। पूरा दिन ही आपका आपके हक़ में जाता हुआ नज़र आता है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हक़ में, ख़ासकर लव रीडिंग्स के मुतल्लिक़ चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। शादी का पैगाम आ सकता है, मंगनी हो सकती है और काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आप लोग रूहानी सुकून महसूस करेंगे, और अगर आप दूध का इस्तेमाल जुमेरात वाले दिन करें तो भी आपको काफ़ी हद तक मदद आएगी। मेडिटेशन कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ रुझान जा सकता है, और अकेले बैठ के या अल्लाह या रहमान का विर्द भी आपके मामलात में बेहतरी ला सकता है। पाक जा सकते हैं, किसी पाक जाके बैठ सकते हैं, तब भी आपके मामलात में बेहतरी नज़र आती है। और अगर हम आप लोगों के जुमा वाले दिन की बात करें, जुमा वाला दिन आपको आपके किसी दोस्त या फ्रेंड की तरफ से कोई कामों की ऑप्शन आ सकती है, कोई रिज़्क़ का मसला हल होता हुआ नज़र आता है, चीज़ें आपके हक़ में जाती हुई नज़र आती हैं और आप एक मुस्तहकम और सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम सैटरडे वाले दिन की बात करें तो सैटरडे वाला दिन ख़ासकर मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात और आपके घरेलू मामलात, अपनी मिसिस के साथ मामलात या अपने सोलमेट के साथ मामलात या आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। घरेलू माहौल काफ़ी पुरसकून नज़र आता है, चीज़ें कंट्रोल होंगी और आप काफ़ी हद तक पुरसकून और मुतमिन नज़र आएंगे। और अगर हम आप लोगों के संडे की बात करें तो संडे वाले दिन आप किसी शादी पे जा सकते हैं, किसी तकरीब में जा सकते हैं और काफ़ी हद तक आप सुकून महसूस करते हुए नज़र आते हैं, घर को टाइम देते हुए नज़र आते हैं, अपने बीवी बच्चों को और अपने फैमिली को वक्त देते हुए नज़र आते हैं। मगर हम चलते हैं आप लोगों के लिए वजीफ़े की तरफ। सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का वजीफ़ा कर सकते हैं, 319 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपने सदका देना है तो थर्सडे वाले दिन आप वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं अपने मामलात की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। कैंसर की बात करें, सितारा कमर वालों की बात करें और वाटर साइन वालों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आपके मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मगर आपके इस वीक में जो है ऊंच नीच के मामलात ज़रूर रहेंगे। आपने कंट्रोल रखना है, अक्ल व फ़हम के साथ मामलात को ज़रूर देखना है कि कहाँ मुश्किलें हैं, कहाँ परेशानियां हैं और चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कोई रूहानी प्रॉब्लम्स फील होती हैं आपके मामलात में, जिसकी वजह से आप थोड़े से जो है वो मुतज़लज़ल नज़र आएंगे, अपने मामलात में परेशान से नज़र आएंगे। मगर किस दिन होंगे परेशान और किस दिन आप ज़्यादा खुश होंगे, या किस दिन आपको अपने कामों के लिए ज़्यादा मदद दरकार होगी, या किस दिन आपको सदका करना है, वो भी हम देखते हैं। मंडे वाले दिन अगर हम आपको देखें तो मंडे वाले दिन आप अपने कामों में काफ़ी हद तक मसरूफ़ नज़र आएंगे। कामों का आगाज़ आप बड़े पॉजिटिव तरीके से करेंगे और अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घरेलू ख़वातीन हैं तो वो भी अपने कामों में लगी होंगी, और अगर जेंट्स हैं वो भी अपने कामों में काफ़ी हद तक
मसरूफ़ नज़र आते हैं, कामों में लगे हुए नज़र आएंगे। मगर ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आप अपने मामला से थोड़ा सा मायूस नज़र आएंगे कि आप इतनी कोशिश करते हैं, कामों में इतनी पेशरफ्त करते हैं, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा या वो चीज़ें, वो नताइज नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं, इसलिए आपकी तबीयत में उदासी आई रहेगी और ये उदासी आपको महसूस होगी अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, क्योंकि 2-3 काम जो आप पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे वो पाया तकमील में नहीं पहुंच पा रहे होंगे, इसलिए आप थोड़े से परेशान होंगे। और ये परेशानी वाला असर आपके बुध वाले दिन तक भी रहेगा कि मंगल और बुध को आप थोड़े से मायूस और अपने कामों में उदास और तबीयत में बेचैनी महसूस करेंगे। मगर जैसे ही थर्सडे का दिन होगा, थर्सडे वाले दिन आप अपने बुज़ुर्गों से मावनत हासिल करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, किसी जो स्पिरिचुअल हीलर है उससे भी आप रब्ता हासिल करके अपने मामलात को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं, क्यों आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और इसी तरह अगर हम जुमा के मुतल्लक बात करें कि जुमा वाला दिन आप अपने माजी को झांकेंगे, बार बार अपने गुज़रे हुए वक्त को और गुज़रे हुए दिनों को देखेंगे कि चीज़ें कैसे आपकी बेहतर हो सकती हैं और चीज़ों में किस तरह का आपका माहौल होना चाहिए। और सैटरडे वाला दिन जो है वो आपकी कई चीज़ें बेहतर करता हुआ नज़र आएगा, आपके काफ़ी मामलात आपको समझ लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं और कहाँ कहाँ आप मुस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगी के पहिए को आगे बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव तरीके से आप आगे जाते हुए नज़र आते हैं। ख़ासकर अगर आपने किसी काम का आगाज़ करना हो, कोई चीज़ें आपने बेहतरी की तरफ लेके जानी हो, तो अपने काम का आगाज़ सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन काफ़ी अल्लाह की मदद मौजूद है। और संडे वाले दिन आप दोबारा अपने बुज़ुर्गों से रब्ता करेंगे, उनकी मशावरत के साथ किसी काम का आगाज़ कर सकते हैं, उनके पास बैठ के अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई नज़र आती है। आप लोग जुमा वाला दिन जो है वो पढ़ाई करें अपने कामों के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, उसमें भी अल्लाह ताला की आपको मदद मिलेगी। और अगर आप पूरे वीक कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो आयतल कुर्सी 11 मरतबा इशा के बाद पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग सदका करना चाहें तो मंगल वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ का सदका करिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन मुहज़्ज़ब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं ग़ुलामों के बाज़ार से गुज़रा, दलाल को देखा कि वो एक ग़ुलाम को बेचते हुए कह रहा था, मैं इसको इसके ऐब पर बेचता हूँ। मैंने दलाल से पूछा, इसमें क्या ऐब है? उसने कहा, इसी से पूछ लीजिए। मैंने ग़ुलाम के करीब जाकर उससे दरियाफ़्त किया कि तुझमें क्या ऐब है? उसने बताया, ऐ मेरे आका, मेरे ऐब बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं लोगों में किस ऐब से ज़्यादा मशहूर हूँ। मैंने दलाल से कहा, मुझे ये बताओ कि इसमें ऐब है क्या? उसने कहा, इसे जुनून की बीमारी है। मैंने ग़ुलाम से पूछा, तुझे मिर्गी कब होती है? क्या हर साल या हर माह या हर जुमा? उसने कहा, ऐ मेरे आका, जब मोहब्बत की बीमारी दिल पर गालिब होती है तो तमाम अज़ा में सरायत कर जाती है, और जब दूसरे अज़ा पर गालिब आती है तो मोहब्बत का खमार तमाम जिस्म में फैल जाता है और अक़ल महबूब की याद में खो जाती है, दिल मुस्तग़रिक़ हो जाता है, बदन साकन हो जाता है और जाहल इसको जुनून समझते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मुझे मालूम हो गया कि ये ग़ुलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया में से है। मैंने दलाल से कहा, ये ग़ुलाम कितने में बेचोगे? उसने 200 दरहम बताए, तो मैंने 220 दरहम दे दिए और ग़ुलाम को घर के करीब लाकर उससे कहा, अंदर दाखिल हो जा। उसने इनकार करते हुए पूछा, क्या आपके घर वाले हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, गैर महरम की तरफ कौन देख सकता है? मैंने उसे कहा कि तुझे इजाज़त है। उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पनाह अता फरमाए, जब भी आपको कोई हाजत होगी तो मैं उस दरवाज़े के बाहर ही उसे पूरा कर दूँगा। बहरहाल मैं खामोश हो गया और उससे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर उसके लिए खाना लाया तो उसने कहा, मैं रोज़ेदार हूँ। जब रात हुई, मैं रात का खाना लाया तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं, और वो घर की चौखट पर ही ठहर गया। आधी रात को जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो क़याम की हालत में नमाज़ पढ़ रहा है और उसे मेरे आने का इल्म ना हुआ। जब नमाज से फ़ारिग हुआ
تو سجدہ کیا اور بہت رویا۔ میں نے اس کی مناجات سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین کو بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا، اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پر جا کر التجا کروں گا؟ یا اللہ، یا رب العالمین، اگر تو نے مجھے عذاب دے دیا تو بے شک میں مستحق عذاب ہی ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف فرما دیا تو جود و کرم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا، اے مولا، اے اللہ عز و جل، تیرے فضل سے ہی صالحین و عارفین نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والے نے تیری ہی رحمت کے باعث توبہ کی۔ اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی اپنی عفو و مغفرت کا ذائقہ چکھا دے، مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں، مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا، رات کو کیسی نیند آئی؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے جس کو آگ کے عذاب، خدائے جبار و عز و جل کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر ملامت کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا۔ تو میں نے کہا، جا، تو رضائے الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ تو وہ دوبارہ رو کر کہنے لگا، اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر تھے، ایک اللہ عز و جل کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا، اب صرف 1 اجر ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں، پھر میں نے اس کو کچھ خرچ دیا مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہنے لگا، رزق کی ذمہ داری زندہ ہستی جس کو موت نہیں ہے اس پر ہے، وہی میرے رزق کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا، اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر عیاں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں گیا، نہ یا جانتا تھا یا نہ مجھے پتا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل، اس غلام کو اللہ عز و جل کی ملاقات کا کس قدر شوق تھا اور مطلوب کے فوت ہونے پر کس قدر غم۔ اے غفلت کی قید میں جکڑے ہوئے، اگر تو امید کی وادی میں جھانکے تو دیکھے گا کہ عبادت گزاروں کے خیمے سمندر کے ساحل پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لیو برج اسد کی بات کریں اور آپ لوگوں کے اس ویک کی پریڈکشن کی بات کریں گے۔ تھیم آف دی ویک میں لیو والوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھیم آف دی ویک میں آپ کے معاملات میں کچھ تھوڑی سی جذباتیت اور تیزی آ جائے گی، اور چیزیں آپ جلد از جلد ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو سپیڈ کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن میں کون سی ایسی چیز آ رہی ہے جو آپ کو کرنی چاہیے اور کون سے ایسے معاملات آ رہے ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم منڈے والے دن کی بات کریں تو منڈے والے دن آپ اپنے کاموں کا آغاز بڑی نئی شروعات کے ساتھ کرنا چاہیں گے اور کئی چیزیں ٹھیک کرنا چاہیں گے، خاص کر اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، اپنی جاب سے ریلیٹڈ معاملات اور اپنی زندگی سے متعلقہ معاملات کو نئی تبدیلیوں کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیں گے۔ مگر منگل کی بات کریں تو منگل والے دن آپ کو مشورے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے یا جن کے پاس آپ آتے جاتے ہیں ان سے ضرور مشورہ کیجیے گا اپنے کاموں کے بارے میں، کیونکہ جس طریقے سے یا جس سپیڈ سے آپ اپنے کام کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی یا چیزیں رکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم بدھ والے دن کی بات کریں آپ لوگوں کی، تو بدھ والے دن آپ اپنے ماضی کی طرف جائیں گے، چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، رکاوٹ نظر آتی ہے، کوئی روحانی پرابلم فیل ہوتی ہے بدھ والے دن۔ اس لیے بدھ والے دن ہم آپ لوگوں کے لیے صدقہ اور پڑھائی ضرور بتائیں گے، جو آپ کریے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں اور جو ستاروں کی پوزیشن خراب ہے اس میں بھی اللہ کی مدد آئے اور وہ بہتری کی طرف چلے جائے۔ تھرسڈے والا دن آپ اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو وقت دے سکتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی فیملی کو باہر لے جا کر سیر بھی کر سکتے ہیں۔
बच्चों का दिन, फैमिली का दिन नज़र आता है आप लोगों का थर्सडे का। और फ्राइडे वाले दिन आप अपने विजडम, अक्ल व फहम के साथ अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल करते नज़र आते हैं। आप अपने इरादों की पुख्तगी की वजह से जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी नज़र आएगी। और सैटरडे वाले दिन चीज़ें काफ़ी मौजूद होंगी, आपके आगे मामलात मौजूद होंगे, मगर आपके अंदर कुछ डर खौफ होगा, समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। मामलात कैसे कंट्रोल करने हैं, किस सिमत लेके जाने हैं, अपनी कन्फ्यूजन को ज़रूर देखिएगा कि क्यों आ रही है। और संडे वाले दिन आप अपने कामों में काफ़ी मसरूफ़ नज़र आते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं और आप बिज़ी, यानी कि जो घरेलू खातून हैं वो भी अपने कामों में मसरूफ़ हैं और जो लोग अपने बिज़नेस में जा रहे हैं वो भी अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। आप लोगों ने वेडनेसडे और सैटरडे को औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 मरतबा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीनी है। और इस वीक में जो पढ़ना है वो है या ज़ल जलाली वल इकराम। सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दिया जा सकता है, रेड कलर की चीज़ का भी सदका आ रहा है और कोई वाइट कलर की चीज़ का भी सदका। ये 3 कलर के सदके आ रहे हैं, ब्लैक, रेड और वाइट में। कोई भी चीज़ का सदका दें, अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। विर्गो बुर्ज सुमला की थीम ऑफ द वीक की बात करें तो थीम ऑफ द वीक में बुर्ज सुमला के जो दुश्मन थोड़े से एक्टिव नज़र आते हैं और आप जब अपने कामों में मसरूफ़ होंगे तो लोग खींचाताई कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। आपकी चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आएंगी अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, मगर उनको आपने कैसे देखना है, इनको कैसे आपने कवर करना है, तो उसको हम देखते हैं डे बाई डे प्रिडिक्शन में कि कौन से दिन ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं। जैसे सोमवार वाले दिन की बात करें, मंडे वाले दिन, तो डबल माइंडेड फील होंगे आप और आप सोचेंगे अपने मामलात को किस तरह करना है, या 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगी अपने कामों के बारे में और उनके ऊपर सोच विचार होगी और वो आप रूहानी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप बेहतर पोजीशन पे मौजूद होंगे। 2-3 ऑप्शन आपके कामों में आपकी मददगार होगी। अगर आप घरेलू मामलात में हैं तो भी आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगी, पैसे की फरावानी हो सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। और अगर हम बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप ब्लैक एंड वाइट के तरीके के ऊपर चलेंगे और अपनी जो भी चीज़ें या जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आप कोशिश करेंगे कि उसको लिख लिया जाए, लिख के काम करें तो काफ़ी हद तक बेहतरीन नज़र आ सकती है। थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने अपने माइंड को क्लीन रखना है, अल्लाह की तरफ ध्यान रखना है। कोई नेगेटिविटी आ सकती है अपने लव अफेयर से मुतल्लिका, घरेलू मामला से मुतल्लिका, और आपकी घरेलू चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपके सोलमेट से प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने आदात को, अपनी चीज़ों को अल्लाह की तरफ रख के सही सिमत में फ़ैसला करना है। जुमा वाला दिन आप लोगों को स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा, चाहे आप फैमिली से रिलेटेड लोग हों, चाहे आप घर से जो मुतल्लिका मामलात को देख रहे हो, आप स्ट्रेट फारवर्ड जितना भी होंगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ठीक और सही नज़र आएंगी। और अगर हम सैटरडे वाले दिन की बात करें, सैटरडे वाले दिन आपको अच्छी पोजीशन पे आपके स्टार्स खड़ा कर रहे हैं, आपको कोई काम आ सकता है, चीज़ें कंट्रोल हैं और कोई ना कोई मुआहदा हो सकता है, कोई अल्लाह की तरफ से आपको काम मिल सकता है। संडे वाला दिन अपनी फैमिली को टाइम दें, कोई शादी के मामलात हो सकते हैं तो उनको आप कवर कर सकते हैं, अल्लाह की मदद भी मौजूद है। और जो मंगनी करना चाहते हैं, कोई लव अफेयर से मुतल्लिका मामलात हैं और कोई घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका मामलात हैं, काफ़ी मदद मौजूद है और पॉजिटिविटी है। इस दिन भी नए काम की शुरुआत हो सकती है। कहते हैं महमूद गज़नवी का दौर था, एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीज़ें दरकार हैं सब हैं सवाए शहद के, तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार किए देता हूँ। इत्तफाक से मौसम शहद का नहीं था। उस शख्स ने हकीम से एक डब्बा लिया और चला गया। लोगों के दरवाज़े खटखटाने लगा मगर हर जगह मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गज़नवी के दरबार में हाज़िर हुआ। कहते हैं वहाँ अय्याज़ ने दरवाज़ा खोला और दस्तक देने वाले की रुदात सुनी। उसने वो छोटा सा डब्बा दिया और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अय्याज़ ने कहा आप तशरीफ़ रखें।
मैं बादशाह से पूछ के बताता हूँ। अय्याज वो डब्बा लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की ज़रूरत है। बादशाह ने वो डब्बा लिया और साइड में रख दिया। अय्याज को कहा कि 3 कैन शहद के उठा के उसको दे दिए जाए। अय्याज ने कहा, हजूर उसको तो थोड़ी सी चाहिए, आप 3 कैन क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अय्याज से कहा, अय्याज वो मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगें, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा, मगर शर्त ये है, मांगें तो सही, तरीक़ा तो सही होना चाहिए, अंदाज़ तो मांगने वाला होना चाहिए, आँखों में आंसू तो होने चाहिए, सजदे में तो जाना चाहिए और गिड़गिड़ा के तो मांगना चाहिए, ताकि उसकी रहमतें जो इतनी पूरी कायनात के ऊपर छाई हुई हैं वो आप पर भी बरसें और वो आपकी बात सुने और आपकी झोली को भर दें। बुर्ज मेज़ान, सितारा, ज़ोहरा एयर साइन आप लोगों का। और थीम ऑफ द वीक बात करें बुर्ज मेज़ान वालों के लिए, तो थीम ऑफ द वीक में आप अपने कामों में काफ़ी मुस्तहकम नज़र आएंगे। 2-3 आपको ऑप्शन मिल सकती हैं आपके कामों से मुतल्लिका, और पैसे से मुतल्लिका जो चीज़ें आप ठीक करना चाहते हैं वहाँ किस तरह की मदद आपको आ सकती है, डे बाई डे प्रेडिक्शन में देखते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करेंगे आपको फ़ायदा हो सकता है, चीज़ें कंट्रोल होती हुई नज़र आती हैं और आपके माली इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। मंगल वाले दिन आप लोग अपने कामों के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। 2-3 काम आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनके अलावा भी एक और ऑप्शन आ सकती है। जिन लोगों की शादी से मुतल्लिका मामला है वहाँ भी ऑप्शन आ सकती है, जिनकी मंगनियाँ नहीं हुई उनको भी कोई ऑप्शन आ सकती है, यानी कि हर तरह की ऑप्शन आ सकती है जिसके ऊपर सोच सकते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन आपको अल्लाह ताला किसी काम में मदद देंगे, कोई काम आपकी झोली में आ जाएगा और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें माली फ़ायदा भी मिल सकता है और अल्लाह की मदद भी मिल सकती है। थर्सडे वाला दिन आपका मंगनी से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, लव अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, घरेलू मामला से रिलेटेड हो सकता है। इन तमाम मामलात में जो भी आप काम करना चाहें वहाँ आपको अल्लाह की मदद मौजूद होगी। फ्राइडे वाला दिन थोड़ा सा उदास होंगे, तबीयत में बेचैनी रहेगी और उदासी की वजह से आपके काम भी थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए उदास ना होइएगा, मायूस ना होइएगा, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा। सैटरडे वाले दिन माली मामलात में थोड़ी सी मावनत चाहिए होगी। आप अपने घरेलू मामलात में भी पैसे की वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, पैसे का इशू आ सकता है। इसको ठीक करने के लिए ज़रूर ऐसी कोशिश करें कि माली मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएँ। और अगर हम संडे की बात करें तो संडे में आपके पास काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौजूद होंगे, चीज़ें मौजूद होंगी, मगर आप सोचेंगे कि इनको कैसे करना है, कोई थोड़ी सी रूहानी रुकावट आपको फील होगी, उसके लिए भी आपने कोशिश करनी है। जुमे वाला दिन आप लोगों ने सदका देना है, और सदका है ब्लू कलर की किसी चीज़ का, कोई कपड़े का दे सकते हैं, या येलो कलर की किसी चीज़ का, चने येलो कलर के होते हैं उसका भी आप सदका दे सकते हैं। और इस वीक में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग जुमा वाला दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं, और पूरे वीक में आप लोग सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, अपने कामों में कि कोई रुकावट ना आए और कोई जो बद असरात हैं वो दूर हों। ये बात बार बार कही जाती है कि जिन लोगों के ऊपर जिन जादू का मसला होता है या रूहानियत का मसला होता है उनके लिए ये जो पढ़ाइयाँ हैं ये पूछ के करना चाहिए, क्योंकि जादू के मसले की वजह से या जिन्नात के मसले की वजह से पढ़ाइयाँ जब तक इलाज ना हो असरअंदाज नहीं होती। अल्लाह आपका हामी नासिर। स्कॉर्पियो की बात करें कि आने वाले वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है। थीम ऑफ द वीक में चीज़ें काफ़ी आपके पास मौजूद होंगी, मगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज नज़र आएंगे। जो आप काम करना चाहते हैं, जो आप प्लानिंग करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको फील होगी कि आपसे शायद सही फ़ैसला ना हो पाए। मगर हम देखते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे वाले दिन की बात करें, मंडे वाले दिन आप अच्छे इरादे के साथ आगाज़ करेंगे, आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत इरादी
का मालिक बनाया हुआ है। अच्छी क़ुव्वत इरादी की वजह से आप सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला भी आपको कामयाब करेंगे। मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन आपके पास सॉलिड पैगाम होगा, अल्लाह ताला की तरफ से आपके कामों में अल्लाह की मदद आएगी और आप कोई काम करते हुए नज़र आते हैं। ये काम आपके मामलात में काफ़ी मुआवन साबित होगा। और वेडनेसडे की बात करें, बुध वाले दिन आप घरेलू मामलात में हों, चाहे ऑफिस में हों, चाहे आप लव अफेयर से मुतल्लिक़ हों, कहीं भी हों, आपकी पोजीशन को मान लिया जाएगा और आपकी बातों को भी मान लिया जाएगा और आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी और आप अपने घर के मामलात में काफ़ी सॉलिड पोजीशन में मौजूद होंगे। चाहे पैसा भी आ सकता है, कोई बेहतर फ़ैसला भी हो सकता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आती है। और थर्सडे वाले दिन कोई आपके दुश्मन या आपके इर्द गिर्द के लोग आपके मामलात में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपके कामों को रोकने की कोशिश करेंगे। आपने देखना है कि वहाँ मामलात को किस तरह हैंडल करना है। रूहानी असर भी महसूस होता है। जुमे वाले दिन आप अपने कामों में थोड़े से डबल माइंडेड होंगे, काम भी आपके पास मौजूद होंगे, चीज़ें मौजूद होंगी, फ़ैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा कि काम क्या करने हैं, फ़ैसला क्या करना है और कामों में मदद कहाँ अल्लाह ताला से लेनी है। और अगर हम सैटरडे की बात करें, सैटरडे वाले दिन आप अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं और आपके पास 2-3 काम मौजूद हैं और आपके पास पैसे का जो इशू है वो भी अल्लाह ताला हल करते हुए नज़र आते हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में नज़र आती हैं। और अगर हम संडे की बात करें, संडे वाले दिन आप लोग नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें आपके हाथ में हैं, किसी भी नए काम की बिगिनिंग हो सकती है और कोई वालदा का हाथ है आपके कामों में, चीज़ें आपके काफ़ी कंट्रोल में हैं और कोई भी काम का आगाज़ करें तो उसको आप मीठे से कर सकते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। और अगर आप लोगों ने जो सदका देना है, थर्सडे वाले दिन आप लोग सदका दीजिएगा, पानी का सदका। पानी के अंदर कोई भी जो है वो अनाज जो है वो अगर जो पानी में जो चीज़ें हैं वो खाती हैं, वो अनाज अगर आप फेंकते हैं तो उससे आपका सदका जो है वो होता है, अगर आप थर्सडे वाले दिन करें। और अगर आप थर्सडे वाले दिन आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीते हैं तब भी आपको फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। और इस पूरे वीक में आप या ज़ल जलाले वाली इकराम 100 मरतबा पढ़ सकते हैं अपने कामों के लिए और अल्लाह ताला से मदद कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहें तो अकीक जेमस्टोन भी आपके लिए बेहतर रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाइशत से कबल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते थे और एक दिन आप अलैहिस्सलाम हिस्बे मामूल बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी रेवड़ से जुदा हो गई। आप अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में जंगल में चले गए और बकरी को तलाश करते करते आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए। जब वो बकरी थक हार कर रुक गई तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई दूसरा चरवाहा होता तो वो यकीनन बकरी को मारने लगता कि उसने उसे ज़ख्मी कर दिया, मगर आप अलैहिस्सलाम उसे प्यार करते जाते और फरमाते जाते, ऐ बकरी, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम मुझसे यूँ भागी? अगर तुम मुझसे नाराज़ थी तो फिर खुद को क्यों परेशान करती है? तूने अगर मेरी हालत पर रहम नहीं किया तो अपनी हालत पर तो रहम करती। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस शफ़क़त पर मलाइका से फरमाया, नबूवत के हक़दार ये लोग हैं और कौम का गम ख्वार वो है जो तकलीफ़ मिलने पर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कौम का सरदार बनने के काबिल वो है जिसकी आदात नेक हों और वो ख़ुद को कौम का खादम तसव्वुर करे। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपने बचपन में या जवानी में बकरियां ना चराई हों और बकरियां चराना अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है और इससे उनके अंदर सब्र और वक़ार जैसे औसाफ मज़ीद नुमायाँ होते हैं। मुनसबे नबूवत के लिए लाजम है कि सब्र व तहम्मुल की आदात नबी में बदरजा अतम पाई जाएँ। सेजिटेरियस की बात करें, बुर्ज कौस वालों की बात करें, फायर साइन आप लोगों का, और थीम ऑफ द वीक में अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपको अच्छी खासी ऑप्शन मिलने वाली हैं और काफ़ी आपका ये वीक मसरूफियत से,
जो है वो दो चार नज़र आता है, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में नज़र आती हैं और 2-3 ऑप्शन ख़ासकर कामों से मुतल्लिक़ ऑप्शन आपके पास आएंगी। आपके मामला किस तरह के होंगे इसको हम डिस्कस करते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन में। मंडे वाले दिन की बात करें तो आप अपने मामला को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कोई 2 काम आ सकते हैं और 2 ऑप्शन आ सकती हैं, कुछ डबल माइंडेड भी हो सकते हैं कि कामों को किस तरह ठीक करना है, चीज़ें कैसे कंट्रोल करना है। और अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप लोग अपने मामलात में डरामाई तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। जो आप काम करना चाहते हैं उसमें अक्सर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी और काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला आपको महसूस होगा। और अगर हम बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन आप अपने बुज़ुर्गों के साथ मुआवनत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मशवरा जो है इस वक्त दरकार है कामों के सिलसिले में या चीज़ों के सिलसिले में या घर के मामलात से मुतल्लिका। और अगर थर्सडे वाला की दिन की बात करें तो 3 डे जो थर्सडे वाले में 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, यानी कि 3 पार्टी सिचुएशन, कि आपको अल्लाह की तरफ से जो मदद है या कामों में जो मदद है वो काफ़ी हद तक भरपूर तरीके से मिलेगी और चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, खुशी वाला माहौल होगा। जुमे वाले दिन भी आप कोई नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, चीज़ें कंट्रोल हैं और अल्लाह की मदद भी है और काफ़ी जो पैसे का मसला है वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। शायद आप कोई सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और अपने घर के से बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, मदद आ सकती है। और सैटरडे वाले दिन जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छी पोजीशन पे घर में बैठे हुए हैं, हाउसवाइफ हैं तो भी अच्छी पोजीशन में हैं, और अगर आप पेरेंट्स का किरदार अदा कर रहे हैं तो भी आप अच्छी पोजीशन में हैं, चीज़ें कंट्रोल हैं, कोई भी नए काम का आगाज़ किया जा सकता है। संडे वाले दिन आपने थोड़ा सा तबीयत में ठहराव लाना है, जज्बातियत नहीं करनी और ना ही जज्बे में रहना है। कंट्रोल ही आपके मामलात में बेहतरी का अंसर वाज़ेह करेगा। आप लोगों के लिए मंडे वाले दिन जो है वो सदका आ रहा है। मंडे वाले दिन आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में सूरह यासीन एक मरतबा अगर पढ़ लें तो भी फ़ायदा होगा, और अगर आप पूरे वीक में पढ़ना चाहें तो आप औज़ बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही पढ़ सकते हैं। अगर ये ना पढ़ा जाए तो आयत करीमा 110 बार ज़रूर पढ़िएगा अपने कामों के लिए, अल्लाह ताला से मदद लेने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में मददगार साबित होंगे। और अगर आप सदका करना चाहें तो बुध वाले दिन आप ब्लैक कलर की चीज़ का, काले माश का सदका कर सकते हैं। अपने कामों से मुतल्लिका सदका करने से भी आपके स्टार्स की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी सितारा ज़ोहल की बात करें कि इस वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है। थीम ऑफ द वीक जो भी आप अपने मामलात कर रहे हैं इसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक तब्दीलियां नज़र आएंगी, और जो मामला चाह रहे हैं ये यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी आपकी जो सितारों की चालें चल रही हैं वो यकसर बदलने वाली हैं, निज़ाम बदलने वाली है। देखते हैं कि आपका निज़ाम कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही हैं और मामलात में क्या बेहतरी आ रही है। सोमवार वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपके पास अल्लाह की तरफ से ऑप्शन आएगी। कोई नया एग्रीमेंट आ सकता है, कोई नया काम आ सकता है, कोई चीज़ें आ सकती हैं जो आप करें तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिल सकता है। और ट्यूसडे वाले दिन नई शुरुआत है, किसी भी काम की शुरुआत हो सकती है, शादी से मुतल्लिका, मंगनी से मुतल्लिका, स्टडी से मुतल्लिका शुरुआत है, नई शुरुआत, और इसमें अल्लाह की मदद भी मौजूद है। और बुध वाले दिन आप लोगों ने अपने मामलात में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और अपने मामलात को सीधे सीधे तरीके से बात करनी है, और पूरे जो आप पुरएतमाद तरीके से बात करेंगे किसी भी शोबे में तो आपको फ़ायदा महसूस होगा। और थर्सडे वाले दिन बद असरात हैं, कोई नज़र बद या कोई बद असरात की वजह से चीज़ें सारी आपको स्टक सी नज़र आएंगी, इसलिए मैं आपको थर्सडे वाले दिन की पढ़ाई और सदका भी बताऊंगा। और जुमे वाले दिन आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और किसी भी नए काम का आगाज़ हो सकता है, पैसे से मुतल्लिका चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी। सैटरडे वाले दिन आप अपने बुज़ुर्गों के पास जाएं, उनसे मशवरा लें, उनसे मावनत लें और कामों में अल्लाह की मदद लें, और कोई देरीना साथी आपकी मदद कर सकता है, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके
समझ में आती हुई नज़र आएंगी। संडे वाले दिन आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, रिज़्क का मसला हल हो जाएगा, कोई पुराना दोस्त आपकी मदद कर सकता है, अल्लाह की भी मदद आ सकती है, किसी भी तरीके से कामों में ज़रूर मदद आएगी। थर्सडे वाले दिन आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिलाकर 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएगा। और गोश्त का सदका थर्सडे वाले दिन अपने लिए ज़रूर कीजिएगा, सर से वार के किसी वीरान जगह पे रख दीजिएगा, ताकि जो चीज़ें या जो रुकावटें या मुश्किलें हैं वो दूर हों। और अगर इस पूरे वीक में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने लिए तो या अल्लाह या रहमान या रहीम 41 मरतबा इशा के बाद पढ़ सकते हैं और अल्लाह से अपने कामों के लिए दुआ कर सकते हैं। बुर्ज दिलों की बात करें, एक्यूरियस स्टार की बात करें कि थीम ऑफ द वीक आप लोगों का, बुर्ज दिलों वालों का कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि आपने इस पूरे वीक में अपने जज्बात और गुस्से को कंट्रोल रखना है और अपनी दिमागी सलाहियतों से इस सारे वीक में असर अंदाज होना है और चीज़ों को ठीक करना है। आपकी दिमागी सलाहियतें इस वीक में आपको असर अंदाज होती हुई नज़र आएंगी। आपके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बा और कुव्वत जो इरादी दी हुई है उससे आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आप किसी दोस्त के साथ अपने मामलात की शेयरिंग करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे और अगर आप बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं तो मशवरा में खैर है और चीज़ें आपके हक़ में आएंगी और कंट्रोल भी हो जाएंगी। और ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 2-3 ऑप्शनें मौजूद होंगी और आप सोच विचार करेंगे थर्ड ऑप्शन जो आपके पास आ रही है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो आपके पास अल्लाह की मदद आ रही है उसके ऊपर आपको किस अंदाज से असरअंदाज होना चाहिए। बुध वाले दिन आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आएंगे, चीज़ें काफ़ी होंगी आपके पास, उनको कैसे करना है, किस अंदाज से करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके ऊपर आपकी जो तवज्जो है वो काफ़ी हद तक कारआमद नज़र आती है। मगर बुध वाले दिन आप लोगों ने सदका और पढ़ाई ज़रूर करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसी दिन कोई बद असरात मौजूद हैं। अगर थर्सडे वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन एक सॉलिड पैगाम है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ सकता है, रिश्तेदारों की तरफ से पैगाम आ सकता है, आपकी चीज़ों से मुतल्लिका कोई पैगाम आ सकता है, उसके ऊपर काम करेंगे, CV जमा करवा सकते हैं, कोई जॉब का पैगाम, कोई कामों का पैगाम, उसको आपने ज़रूर देखना है। जुमा वाले दिन आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन के काम हो सकते हैं, कोई आपके कारोबारी काम हैं या कोई निकाह के काम हैं या जो लिख पढ़त वाले काम हैं वो आपको नज़र आएंगे। आपके जो आपके एग्रीमेंट हैं वो साइन होते हुए नज़र आ सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको नज़र आएंगी। सैटरडे वाले दिन आप अपने कामों में काफ़ी मददगार महसूस करेंगे, अल्लाह की मदद महसूस करेंगे और जो आपका की हुई प्लानिंग है वो आपको मज़ीद आगे लेके जाएगी। और तलबा तलबात के लिए सैटरडे वाला दिन बेहतरीन है, अच्छी मुशावरत के साथ आप अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। संडे वाले दिन आप अपने बुज़ुर्गों के मशवरे से कोई काम करेंगे और बुज़ुर्गों के पास बैठिएगा, उनके पास रहमतों और बरकतों का सिलसिला रहेगा और खैर बरकत से आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। आपसे बात थी बुध वाले दिन। बुध वाले दिन आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर सकते हैं खुला और 500 मरतबा इशा के बाद, और इस पूरे वीक में सूरह कौसर 21 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। अपने कामों के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में मददगार होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक जंगल से हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे को देखा जो बरहना पादस्त बस्ता खड़ा था और बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ कर रहा था, ऐ अल्लाह तू कहाँ है, मेरे पास आकर बैठ, मैं तेरे बालों को संवारूं, तेरे हाथ पाँव धुला दूं, तुझे नहलाकर साफ़ सुथरा बनाऊं, तेरे जूते कसूं और तुझ पर अपना सब कुछ निछावर कर दूं, मैं तेरे लिए बिस्तर बछाऊं, तू बीमार हो तो तेरी तीमारदारी करूं, तू बीदार हो तो तेरा मुंह दहलाऊं, तुझे थप कर मीठी नींद सलाऊं, और अगर तू अपने घर का दीदार करवा दे तो मैं सुबह शाम दूध और मक्खन तेरे घर लेकर आऊं और मेरी तमाम भेड़ बकरियां तुझ पर कुर्बान हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चरवाहे के पास गए और फरमाया कि तू किससे बातें करता है और किसको अपना मेहमान बनाना चाहता है और किसकी दावत करना चाहता है। चरवाहे ने कहा, मैं अल्लाह ताला से मुखातब हूँ और वो मेरा पैदा करने वाला है, जिसने मुझे ज़बान अता फरमाई ताकि मैं बात कर सकूं, जिसने मुझे रेवड़ अता फरमाया जिनके दूध से मैं नफ़ा उठाता हूं और जिनकी खाल से मैं अपना लिबास बनाता हूं। उसने अपनी मुझ पर अनायात की है
اور میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ میرے گھر تشریف لائے تو میں خوشی سے دیوانہ ہو جاؤں گا اور میری عزت میں اضافہ ہوگا جب اس کی عزت کم ہونے والی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کلام گستاخی پر مبنی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہتا ہے. وہ رازق ہے, اسے کھانے کی تو حاجت ہی نہیں, وہ جسے نیند نہیں آتی, اور تو کیا جانے وہ کیسا ہے. جان رکھ وہ ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ سب کا حاجت روا ہے اور وہ تیری بکریوں کا دودھ نہیں پی سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے اس انداز سے بات کی کہ وہ اپنی باتوں پر شرمندہ ہوا اور کہنے لگا میری زبان آپ علیہ السلام نے بند کر دی اور میرا دل شرمندہ ہے. پھر اس چرواہے نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بیابانوں میں نکل گیا. وہ چرواہا پڑھا لکھا نہ تھا اور اپنی عقل کے مطابق بات کرتا تھا. اس کے دل میں محبت الہی موجزن تھی اور وہ عشق نشا میں مخمور تھا. جب وہ چرواہا دیوانہ وار بیابانوں میں گھوم رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, اے موسیٰ تو نے ایک عاشق کو مجھ سے جدا کر دیا اور تیرا کام بندوں کو مجھ سے ملانا ہے نہ کہ جدا کرنا. میں بندوں کی نیت دیکھتا ہوں اور ان کے اعمال کے مطابق ان کی حاجت سنتا ہوں. میری نظر حال پر ہے نہ کہ کال پر. میں دل کو دیکھتا ہوں اور الفاظ کی جانب تو میرا دھیان نہیں. تو ایک بندے کو تو نے مجھ سے جدا کر دیا, تو جا پھر سے میری اس کو راہ پر لگا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق بیابانوں میں اس چرواہے کو تلاش کرنے لگے اور بالآخر اسے ڈھونڈ لیا. آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا تم اپنی باتیں کرتے رہو اور میں نے تمہیں جو منع کیا تھا اسے بھول جاؤ. تمہاری محبت بری باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور تم مجھے معاف فرما دو. اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کی بجائے نیت کو دیکھتا ہے اور اسے تیری یہ باتیں اتنی پسند ہیں کہ اس نے مجھے وحی کی کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اسی طرح باتیں کرتا رہے. پائسس کی بات کریں, برج حوت ستارہ نیپچون کی بات کریں کہ آنے والے ویک میں کیا ہونے جا رہا ہے. تھیم آف دی ویک یاد رکھیے گا کہ ارد گرد نگاہ رکھنی ہے, چیٹنگ نہ ہو پائے. لوگ آپ کو چیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کے معاملات میں اس وقت بیش بہا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس پورے ویک میں کافی مد و جزر رہے گا. تو دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے پریڈکشن میں. منڈے والے دن آپ فیملی کو ٹائم دیں گے, خوشی والا دن ہوگا اور فیملی کے معاملات میں آپ کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. گھر کو بھی آپ گھر کی پلاننگ سوچیں گے, خاص کر نئے گھر کی پلاننگ ہو سکتی ہے. گھر بنانا چاہتے ہیں, گھر کے متعلقہ معاملات ہیں, اس کے اوپر ڈسکس ہو سکتی ہے. چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہیں. منگل والے دن آپ اپنے کاموں میں کافی مصروف رہیں گے, کاموں میں کافی اضافہ ہو جائے گا اور کافی بیزی ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھا کیجیے گا. ویڈنسڈے والے دن آپ کو اچھی پوزیشن ملے گی, آپ کے پاس کوئی کام آ سکتا ہے, چیزیں کنٹرول ہوں گی اور آپ اچھی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تھرسڈے والا دن کوئی بھی کام آغاز کر سکتے ہیں. تھرسڈے والا دن بہترین دنوں میں سے آپ کے لیے بہترین دن آ رہا ہے. ستارے سارے آپ کے حق میں بہتر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس دن آپ خوش ہوں گے, پیسہ بھی آ سکتا ہے, چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جمعے والے دن آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیے گا, وقت دیجیے گا, بزرگوں سے مشورہ لیجیے گا, کافی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی اور چیزیں کنٹرول نظر آئیں گی. سیچرڈے والے دن آپ لوگ کسی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں, کہیں جا سکتے ہیں اور کوئی اچھا پیغام آ سکتا ہے, کاموں کے سلسلے میں جا سکتے ہیں اور سفر والا دن نظر آتا ہے. سنڈے والے دن بہت احتیاط کیجیے گا کیونکہ سنڈے والے دن آپ کا دماغ تھوڑا سا سٹک ہو جائے گا, چیزیں رکی ہو جائیں گی, کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ سنڈے والے دن دینا ہے. سنڈے والے دن کیونکہ رکاوٹ موجود ہے, سنڈے والے دن گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں. گوشت کے اوپر آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھ کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا ویران جگہ پہ رکھوا سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اس پورے ویک پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے اس پورے ویک میں سورہ اخلاص 41 مرتبہ آ رہا ہے. سورہ اخلاص 41 مرتبہ اگر آپ اپنے کاموں کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوب مدد آئے گی. اور آپ لوگوں نے اس پورے ویک میں ایک خاص کام ضرور کرنا ہے. ہمیں
کمنٹ ضرور کرنا ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر آپ نہیں کر سکے. اور اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی چیز پوچھنا چاہیں, ہمارا آپ کی اسکرین کے اوپر واٹس ایپ کا نمبر چلتا ہوا نظر آئے گا. یہ نمبر عائشہ کے پاس ہوتا ہے, اور ہم اگلے ویک آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ پروگرام جو لا رہے ہیں, اس میں آپ کے سوال و جوابات بھی سیشن ہوگا, جس میں آپ لوگوں کے سوال و جوابات کا جو ہے بتایا جائے گا. جو کوئی اپنے سوال پوچھے گا اس کا آنسر دیا جائے گا. جو ہم اگلے سنڈے جو پروگرام کریں گے, آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. کمنٹ کے ذریعے ہمیں جو ہے جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر اپنے کویسچن بھیج سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم جو آپ لوگوں کے لیے پروگرام کریں گے, کوشش کریں گے اس میں جو پڑھائی بتائی جائے وہ پڑھائی بتا دیں, اور جو چیزیں آپ پوچھنا چاہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.